Welcome to VLearn. This is session 4 of mathematics. So in this session we are going to discuss about special products and factorization. So here are the topics which we are going to cover in this session. First of all, we are going to discuss about the introduction part. Then after that we are going to discuss special products and their geometrical verification. Products के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देन HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स. उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना है ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस एंड एट लास्ट देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू, दैट इज डू इट योरसेल्फ. So let us start the topic with the introduction part. So first of all, as you can see here, the products such as 108 into 108, 97 into 97, 104 into 96, 99 into 99 into 99 means यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं इनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट अब यहाँ पर डिफरेंस आता है कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स गिवन हैं पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, तो उन्हें हम कैसे ऑपरेट करेंगे, उनके ऊपर कैसे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है. लाइक यहाँ पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है a प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स इनका अगर प्रोडक्ट करना है वो हम कैसे करेंगे. देन a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, देन a माइनस बी का क्यूब रेस्पेक्टिवली. सो सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड स्पेशल प्रोडक्ट्स. इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम स्पेशल प्रोडक्ट्स बोलते हैं. नाउ लेट अस see how we can solve these special products. सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे. So we have taken an example of a प्लस बी होल स्क्वायर. जब हम बात करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की, इसका मतलब है कि a प्लस बी को हम दो बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. So we will write it as a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी. दो बार हमने a प्लस बी को यहाँ पर लिखा है. अब कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है उसका एक फिक्स प्रोसीजर है. कैसे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस a को हमें इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी. सिमिलरली अब प्लस b यहाँ पर आएगा. अब सिमिलरली b को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ. अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे. So a into a is, we can write here similarly plus a into b plus b into a and plus b into b. इससे हम सॉल्व करेंगे a multiplied by a is x a square plus ab then again plus ab plus b square. Now we can see here we have a formula that is a square, ab plus ab will be 2ab and plus b square. So this is how we can solve such type of expressions. Now there is another example here, like here we have to find, or you can say we have to perform the operation on a minus b whole square. So again we are going to repeat the same process, that is for a minus b whole square. अगर हमें a minus b whole square का उस इवेल्युएट करना है, उसे भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे. लाइक a minus b whole square, we can write it in the similar way, like a minus b into a minus b. We are going to multiply the same term two times. a minus b और a minus b हमने यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई किया. Now a multiplied by a minus b, इस a को हम इस a minus b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. Then minus sign will be there. Then b multiplied by a minus b. Now when we multiply a into a, we are going to get a square. After that we are going to multiply a with b, then b with a. Similarly minus minus will become plus b into b. So we get a square minus ab, again minus ab plus b square. So we get a square minus 2ab plus b square. So this is how we can solve
the expression related to a minus b whole square. Now let us discuss how we can find the product between a plus b and a minus b. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर दो टर्म्स हैं हमारे पास a plus b और a minus b, उन्हें हम यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो सेम टेक्निक अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे. हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी और a माइनस बी को. अगेन सेम टेक्निक हमें यहाँ पर यूज करनी है. a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ, देन प्लस साइन एंड b. अब b को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b के साथ. सो a इंटू a माइनस a इंटू b प्लस b इंटू a, अगेन माइनस plus minus is minus, so b into b, so we'll get a into a is a square, then minus ab, then again here as you can see here we have plus ba. so b को जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें ba मिलेगा, then minus b square. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस ए बी और माइनस ए बी अपोजिट टर्म्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी. सो वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द ऑपरेशन ऑन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इसमें हमें ए प्लस बी का होल क्यूब फाइंड आउट करना है. a प्लस बी का जब भी हम फाइंड आउट करेंगे होल क्यूब, उसके लिए हमें सबसे पहले इसको पार्ट्स में ब्रेक करना होगा. a प्लस बी का अगर हम इवेल्युएशन करते हैं a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर. पावर्स सेम है तो ऐड हो जाती हैं. That means 2 plus 1 is 3. So we'll get a plus b whole cube. इस टाइप से हमने यहाँ पर इसको लिखा है. अब a plus b का होल स्क्वायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे. So it will be a square plus b square plus 2ab. हमें ये यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा a square plus b square plus 2ab. a plus b के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई a विद द होल टर्म. सो वील गेट a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. a को जो हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर दैट इज a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 2ab विल गेट 2a स्क्वायर b प्लस अगेन a स्क्वायर b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर विल गेट b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर. So this is what we are going to get here. अगर हम यहाँ पर चाहें तो और भी वैल्यूज जो हमारे पास कॉमन है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं. लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब हमने यहाँ पर लिखा है सेम एज इट इज. अब अगर हम इन दो टर्म्स को यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 2a स्क्वायर b है, यहाँ पर a स्क्वायर b है, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं. सो विल गेट 2a square b plus a square b will get 3a square b. Similarly, ab square plus 2ab square will get 3ab square. अब यहाँ पर 3a square b और 3ab square से हम 3ab कॉमन ले सकते हैं. थ्री ए बी हम अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा
3ab यहां से हमने कॉमन लिया, यहां पर a बचा एंड यहां से हमें b मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच इक्वेशंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो बेसिकली जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इसे बेसिकली हम एक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लाइक फैक्टराइजेशन ऑफ अ polynomial is a process of writing the polynomial as a product of two polynomials. दो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, उन्हें आप प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Each polynomial in the product is called a factor of the given polynomial. अगर यहाँ पर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं लाइक 10a - 25. एक ये हमने इक्वेशन ली, एक एलिमेंट ले लिया पॉलिनोमियल फॉर्म में. इसको हमें अगर फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे. So first of all we'll take an example here of 10a - 25. हमें यहाँ पर 10a - 25 को सॉल्व करना है. तो इसके लिए हमने क्या किया, a माइनस 25. इसमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम यहाँ पर कि दोनों में ही 5 कॉमन है. तो हमने क्या किया, 5 को कॉमन लिया, देन 5 2 ज़ा 10, सो वी गेट 2a माइनस 5. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस. हमें इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि कितनी वैल्यू को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं. जो भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं हम उन्हें आउटसाइड द ब्रैकेट रखेंगे. सिमिलरली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अदर इक्वेशन लाइक हियर वी हैव x स्क्वायर y क्यूब प्लस x क्यूब y स्क्वायर. So, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर्स हैं x में वो है x क्यूब. मींस अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो मिनिमम एलिमेंट को ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में मिनिमम x स्क्वायर है. तो हम यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे. सिमिलरली y की अगर बात करें वहां से हमें y स्क्वायर कॉमन मिलेगा. सो वील गेट इसमें से दोनों से अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं और सेम वे में अगर दोनों से y स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें यहां पर मिलेगा फ्रॉम हियर वील गेट y एंड फ्रॉम हियर वील गेट x. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर. अब अगर इसकी हम बात करें तो हमें यहां पर जो फैक्टर्स मिलेंगे वो हमारे पास होंगे x स्क्वायर, y स्क्वायर, x स्क्वायर y, xy स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड y प्लस x. ये सारे हमारे फैक्टर्स होंगे x स्क्वायर y क्यूब प्लस x क्यूब y स्क्वायर के. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द you can see here factorization involving the difference of two squares. बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें एक फॉर्मूला बनेगा जो कि दो स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे. लाइक हम यहाँ पर सपोज एक पॉलिनोमियल लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है. यहाँ पर लाइक अगर हम 9 का देखें तो हम 3 को स्क्वायर करते हैं तो 9 हमें मिलेगा. सिमिलरली x स्क्वायर व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द स्क्वायर ऑफ x. सिमिलरली 16 हमें मिलेगा अगर हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली y स्क्वायर व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स. So this is what we are going to get here 3x whole square minus 4y whole square. Okay.
Now when we have this, so this is basically a formula of a square minus b square. So we'll get a minus b and a plus b. इस इक्वेशन को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिलेगा 3x minus 4y multiplied by 3x plus 4y. So now let us find the factorization of a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसे हमें परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म a plus b होल स्क्वायर. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. So suppose we have a polynomial that is nx square plus 24xy nx square plus 24xy plus 16y square. So when we are going to solve this, here we have to keep in mind that we have to make it a perfect square. हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो टेक्निक यूज करनी है वो ये देखना होगा कि ये जो नंबर है किसी एक नंबर का स्क्वायर हो जाए. तो ये 3x का होल स्क्वायर हो सकता है. सिमिलरली ये 4y का होल स्क्वायर हो सकता है. नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये 2ab का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो इसको हमें क्या करना है, प्लस 2a इज 3x into b is 4y. So we are going to get 3x whole square plus 2 into 3x into 4y as you can see here, then plus 4y whole square. Now so we can write it as 3x plus 4y whole square. So this is how we can solve the polynomials related to the factorization of a perfect square. Similarly, here is another example. You can try this like x to the power 6 minus 8x cube plus 16. यहाँ पर भी हम देखें तो x to the power 6 को हम लिख सकते हैं x cube का होल स्क्वायर माइनस देन यहाँ पर 8x क्यूब है. इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर b फैक्टर क्या है. तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर. तो a हो गया हमारे पास x क्यूब और b हो गया 4. अब हमने उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, दैट इज a minus b whole square. Then we are going to get x cube minus 4 and x cube minus 4. Now let us solve next category of the polynomial, that is sum or difference of two cubes. सम और अगर डिफरेंस की हम बात करें तो वो कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब. So like suppose we have you can say a polynomial 64 a cube plus 27 b cube. हमारे पास यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है. हमें इसे सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्यूबिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो 64a क्यूब होता है 4a का प्लस 27b क्यूब होता है 3b का. अब हम यहाँ पर देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है. a क्यूब प्लस b क्यूब का सबसे पहले फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b. देन a प्लस b को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, a का स्क्वायर करते हैं, b का स्क्वायर करते हैं और लिखते हैं माइनस ab. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक स्क्वायर ऑफ a, दैट इज 4a का होल स्क्वायर, देन प्लस 3b होल स्क्वायर एंड माइनस ab. 4a into 3b. So this is how we can convert it into the cubical form. अब हम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में इसको लेकर आएंगे, प्रॉपरली इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे.
4a square means 16a square plus 9b square minus 12ab. So this is how we can convert the cubical form of an equation into polynomial form. Now similarly there is another example, that is 8x cube minus 125y cube. So here we can see here that 8x cube को अगर हम लिखें क्यूबिकल फॉर्म में, वो लिख सकते हैं हम 2x to the power cube, similarly minus 5y to the power cube. After that we have used the formula of a cube minus b cube. उसके बाद हमने a cube minus b cube का फॉर्मूला लगाया, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में a cube plus b cube का फॉर्मूला लगाया, और लास्ट में हमें आंसर मिलेगा 2x minus 5y multiplied by 4x square plus 10xy plus 25y square. Now the next category here is factorizing trinomials by splitting the middle term. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे. Suppose we have an equation x square plus 3x plus 2. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक इक्वेशन है, उसे हमें सॉल्व करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. यहाँ पर हमारा रूल होता है कि जो भी पावर हमारे पास हाईएस्ट पावर है उसको प्लस कांस्टेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे. हमें यहाँ पर मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, वी आर गोइंग टू गेट 2x स्क्वायर. तो हमारा मोटिव है हमें 2x स्क्वायर यहाँ पर लेकर आना है. किस नंबर के थ्रू? 3x के थ्रू. 3x को हमें ब्रेक करना है दो पार्ट्स में. इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि वो जो दो पार्ट्स हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन हमें 3x मिले, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2x स्क्वायर मिले. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 2. अगर हम यहाँ पर देखें 2x इंटू एक्स करते हैं तो 2x स्क्वायर मिलेगा, और अगर 2x प्लस एक्स करते हैं तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा जो पहले था. अब हम इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले सकते हैं. यहां से अगर हमने x कॉमन लिया तो हमें यहां पर मिलेगा x प्लस 2. सिमिलरली अगर इनमें से अगर हम कॉमन देखें तो 1 हमें कॉमन मिल जाएगा. तो यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमें यहां पर लिखना होगा प्लस 1, देन सेम एज इट इज x प्लस 2. अब इस पूरे पॉलिनोमियल से x प्लस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट x प्लस 1. सो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 आर दी फैक्टर्स इन दिस इक्वेशन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग हियर, दैट इज HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स. अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं वहां पर हमें HCF निकालना होता है, तो सिंपली हमारे पास टेक्निक होती है कि हमें यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है. So let us take an example, like we have 4x square, you can see here 4x square y and x cube y square. ये दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें हमें HCF फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 4 में और यहाँ पर 1 है, इन दोनों में कॉमन है 1 हमने यहाँ पर लिखा. देन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिखा, दैट इज एक्स स्क्वायर. और वाई और वाई स्क्वायर में जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिखा, दैट इज वाई. सो वी आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर वाई. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द HCF. Similarly in next example also, x minus 2 whole cube multiplied by 2x minus 3 and x minus 2 whole square multiplied by 2x minus 3 whole cube. इसमें भी हम इसी तरीके से कॉमन ले सकते हैं. After taking common, we are going to get x minus 2 whole square multiplied by 2x minus 3. तो इस तरीके से हम HCF को सॉल्व कर सकते हैं. Now the next is LCM of polynomials. HCF का जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर LCM of polynomials. Like हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर 4x square y and x cube y square. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 और
और 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हमें यहाँ पर मिलेगी वो 4 होगी। 4 हमने लिखा। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, इसलिए एक्स क्यूब लिखा। सिमिलरली वाई और वाई स्क्वायर में हाईएस्ट पावर है हमारे पास वाई स्क्वायर, हमने वाई स्क्वायर लिखा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ जस्ट अपोजिट होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल सेम वही है, जैसे अभी हमने एचसीएम को एचसीएफ को कैलकुलेट किया, वैसे ही अब यहाँ पर फिर से एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाईएस्ट पावर्स हमें यहाँ पर चूज करनी है। दोनों ही टर्म्स में हमारे पास x माइनस 2 में अगर हम देखें क्यूब इक्वल पावर हाईएस्ट है, सो x माइनस 2 हम यहाँ x माइनस 2 दी पावर क्यूब हम यहाँ से लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में भी 2x माइनस 3 टू दी पावर क्यूब ये हाईएस्ट है, वो हम यहाँ से लेंगे। सो दैट विल बी आवर आंसर। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशंस हैं तो उनमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसके साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन का, दैट इज फ्रॉम किस नंबर से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस 1 अपॉन, यू कैन सी हियर 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1। तो हमें यहाँ पर 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को। तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 के साथ माइनस x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 के साथ, then x plus 1 multiplied by 3x plus 1। जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट, सपोज 3x को हमें सबसे पहले x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, देन y के साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली माइनस 2 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 को 1 के साथ भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। So after the multiplication operation, we are going to get 3x minus 1 upon 3x square plus 4x plus 1. That is अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 3x minus 1 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 3x square plus 4x plus 1। ये हमें कैसे मिलेंगे, सेम वही टेक्निक हम फिर से यूज करेंगे। 3x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ, उससे हम माइनस करेंगे x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद 3x प्लस 1 के साथ, देन 1 की वैल्यू को 3x प्लस 1 के साथ। सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन भी हम दो पॉलिनोमियल्स के बीच में परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक 5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय, यू कैन सी हियर, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लाइक वी हैव पॉलिनोमियल्स हियर 5x प्लस 3 अपॉन, हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिया 5x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर से। सो वील गेट 5x प्लस 3 2x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 1 multiplied by x plus 1. So 5x when multiplied by 2x we'll get 10x square, then 5x multiplied by minus 1 we'll get minus 5x. Similarly 3 को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा प्लस 6x and 3 when multiplied by minus 1 we'll get minus 3. We are going to divide this by sorry 5x multiplied by x we'll get 5x square plus
5x minus x and minus 1. So this is how we can perform the multiplication operation. इस तरीके से हम यहाँ पर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. अगर कोई भी इक्वेशन फर्दर सॉल्व होती है तो आप उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. लाइक -5x + 6x, उसको हम x लिख सकते हैं. सिमिलरली 5x - x को आप 4x लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली एक और यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है. आपके प्रैक्टिस के लिए यू कैन ट्राई दिस पॉलिनोमियल. सो नाउ एट द एंड here is an exercise for you. You can try out these questions. So first question is using special products calculate each of the following. हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. 102 को 102 के साथ, 108 को 108 के साथ, and then 69 multiplied by 69. Then after that the next question is without actual multiplication find each of the following products. Without multiplication हमें इन products को यहाँ पर find out करना है. Similarly third question is factorize. You have to solve all the polynomials which are given here. So this is the end of today's session. Thank you.